Hello, my dear students. Welcome to the online platform, educational platform of DSA. Now, this is your Neetu ma'am and welcome to the digital classroom. Now, what a wonderful weather it is. What a wonderful morning it is. Just be energized and stay tuned for the next lecture. Now, today we are going to start the last year synonyms question. We have started the second topic of our timetable, that is synonyms. We have done some of the sentences of synonyms yesterday. We have done 50 questions of synonyms yesterday. Today I am going to start some of the questions which came last year's. That means these questions are from last year papers. We are doing topic-wise revision of each and every segment of NDA exam. We are doing questionnaires of topic-wise revision. That means जितना भी हमारे टॉपिक हैं जो हमने सिलेक्ट किए हैं रिवीजन के लिए, उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस, देन द एनडीए लेवल क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पेपर्स. बेटा अगर आपने पिछले 10 सालों के पेपर से भी रिवाइज कर लिया ना, दैट मीन्स यू विल गेट द नॉलेज of how to solve the question paper, and I assure you will come with flying colors. So let's start the synonyms, and that also from last 10-year question papers. So are you ready? Let's start it. So my dear students, I'm going to take the question paper of 2018, year 2018, and that also the second paper. Then we'll remind it. 2018 second paper, then 2018 first paper, then 2017, 16, 15 ऐसा करके, और 2019 के हम पूरे पेपर सॉल्व करेंगे. So that you must have the confidence of solving the whole paper even. So let's start with the synonyms of year 2018. Let's start. Now the first sentence. अब just observe the trend. Just follow the trend. Some of the words are repeating many times every year. हर एक फॉर्म में, चाहे वो स्पॉटिंग द एरर हो, चाहे वो सिनोनिम्स हो, और हम और भी आगे जो ट्रेंड करेंगे, you will be able to object the trend. You will be able to just follow the trend. Check it out. यहाँ पे हमको massive word highlighted दिखा है. The Industrial Revolution saw a massive rise in the population of Europe. Industrial Revolution के बाद यूरोप में population में massive rise हो गया. Massive rise means hike, means उठना. That means rise करना, बढ़ना. Remember कल हमने rise और raise का difference किया था. तो rise means बढ़ना. अब वो बढ़ भी, हाइक भी कैसा हो रहा है, किस स्पीड से राइज हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, लेट्स चेक. बट वी गॉट अ हिंट कि बात ऊपर उठने की हो रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है. कैसे जा रहा है, लेट्स सी. इनॉर्मस, व्हाट डू यू मीन बाय इनॉर्मस? इनॉर्मस मीन्स ह्यूज, लार्ज, बहुत ज्यादा. नाउ एरेनियस, हमने स्पॉटिंग द एरर की डायरेक्शंस देखे हैं. Pick out the erroneous part. Erroneous means जिसमें error है. Hazardous means dangerous. Perilous means violent, भयानक. See, smoking is hazardous to health. Perilous storm, भयानक तूफान. Now which word is connecting with the question? आप ही डिसाइड करिए. Massive rise कैसा था? एरर वाला था, इसको एलिमिनेट करिए. डेंजरस राइज था, वॉयलेंट राइज था. राइज कैसा था, ऊपर कैसे उठ रहे थे, बहुत बड़े लेवल पे. सी, इनॉर्मस मीन्स ह्यूज, एकदम ज्यादा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो मैसिव मीन्स इनॉर्मस. ओके, नाउ नेक्स्ट. I had some deepest conviction reflected in my work. Conviction, डीपेस्ट मतलब गहरा. मेरे दिमाग में, मेरे काम में कुछ बहुत गहरा दिखाई देता है. गहरी सोच, गहरा असर. क्लियर? कैसा? Ideas and opinions
दैट मीन्स मेरे आइडियाज इतने गहरे विचार दिखाई देते हैं मेरे काम में। फर्म बिलीव्स जो सच्चाई हैं, जो फैक्ट हैं, फैक्ट्स। नाउ प्रेजुडाइज करना, फेवर करना, बाइस करना, अगेन फेवर करना, पार्शियलिटी करना, तो ये दोनों वर्ड तो एलिमिनेट हो गए। नाउ आइडियाज ऑन ओपिनियंस या फर्म बिलीव्स, आई हैड सम डीपेस्ट कन्विक्शंस रिफ्लेक्टेड इन माय वर्क। मेरे काम से क्या रिफ्लेक्ट होता है? मेरे आइडिया रिफ्लेक्ट होते हैं या तथ्य रिफ्लेक्ट होते हैं कि मेरे लिए क्या सच है, मेरे क्या उसूल हैं, मेरे क्या फर्म बिलीव्स हैं। फर्म बिलीव्स उसूल मीन्स सच्चाई, दैट मीन्स आपके काम में फर्म बिलीव्स, तो कन्विक्शन मीन्स फर्म बिलीव्स, तो आंसर इज फर्म बिलीव्स। नेक्स्ट, द बॉय इज वेरी टिमिड। दिस वर्ड हमने किया हुआ है टिमिड मतलब टिमिड का मतलब क्या? सी, करेजियस मीन्स हैविंग करेज, बहादुर। शाय, शर्मीला। क्लेवर, चतुर। डल मीन्स बुद्धू, टिमिड करेक्टली कनेक्ट्स विथ शाय। इसका एक और सिनोनिम नर्वस, इसका एंटोनिम बोल्ड। बोल्ड का एंटोनिम होता है टिमिड का मतलब शाय या नर्वस। तो लड़का कैसा था? शाय। ओके, नाउ जस्ट सी द न्यू वर्ड्स, क्वालिटीज। माय फ्रेंड इज एज स्टबर्न एज अ म्यूल। म्यूल इज अ क्रिएचर। म्यूल जो एक जगह चिपक गया फिर वो हटता नहीं है, वहीं अड़ जाता है, वो हटता ही नहीं है। ओके, नाउ सेंटेंस कह रहा है माय फ्रेंड इज एज स्टबर्न एज अ म्यूल। मेरा फ्रेंड म्यूल के जैसे है, एक जगह अटक गया ना तो वो हिलता ही नहीं है वहां से, वहां अड़ गया मतलब अड़ गया। गॉट द ट्रिक? नाउ चेक आउट। ऑब्जर्वेंट मीन्स जो ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर? ऑब्नॉक्शियस मीन्स जो नहीं ध्यान दे रहा। नेक्स्ट, ऑब्स्टिनेट एंड कॉर्पुलेंट मीन्स मटेरियलिस्टिक, जो मटेरियल चीजों के बारे में बोल रहा है, फिजिकल। तो कॉर्पुलेंट गलत, ऑब्जर्वेंट गलत। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, वन हु इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट समथिंग, जो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। वन हु इज हैविंग हिज ओन थिंकिंग, आप उसको कितना भी समझाएंगे वो नहीं समझेगा, वो अपने ही इश्यूज से चलता है, वो अपनी ही बात करता है। स्टबर्न मतलब जिद्दी, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी। स्टबर्न एंड ऑब्स्टिनेट मतलब वो जिस बात पे अड़ गए सो अड़ गए, वहां से हटेंगे ही नहीं, उस बात से चेंज ही नहीं होंगे। सो द सिनोनिम ऑफ स्टबर्न इज ऑब्स्टिनेट। नाउ हिज बिहेवियर वाज डेलिबरेटली प्रोवोकेटिव। डेलिबरेटली मीन्स जानबूझ के, इंटेंशनली सोच समझ के। प्रोवोकेट करना, लेट्स चेक। एक्साइटिंग डिजायर मतलब इच्छा, क्या वो इच्छा जगा रहा है उसका बिहेवियर आपके दिल में? नो। इन्फ्यूरिएट कर रहा है, आग लगा रहा है। पिटिएबल मीन्स दया, क्या दया आ रही है? क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट। नाउ इन्फ्यूरिएटिंग मतलब किसी को भड़काना, इन्फ्यूरिएट करना, आग लगाना, भड़काना बिहेवियर में। प्रोवोक करना, आग लगाना, भड़काना। तो इन्फ्यूरिएटिंग इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ प्रोवोकेटिव। नाउ द नेक्स्ट, नाउ वी आर स्टार्टिंग पेपर 2018 फर्स्ट। 2018 के सेकेंड पेपर में सिर्फ 5 सिनोनिम्स आए थे। नाउ वील चेक 2018 में कितने सिनोनिम्स आए थे। बॉयज, व्हाट्स द ट्रेंड इज आइदर 5 सिनोनिम्स विल कम और 10 सिनोनिम्स विल कम, या तो 5 आएंगे या 10 आएंगे। ओके, लेट्स चेक। इफ यू वांट टू लीड अ लाइफ ऑफ साइकोफेंसी एज यू डिड ड्यूरिंग द, आई डू नॉट वांट यू टू लीड अ लाइफ ऑफ साइकोफेंसी एज यू डिड ड्यूरिंग द फॉरेन रूल। नाउ साइकोफेंट कौन होता है? पहली बात, हु इज अ साइकोफेंट? साइकोफेंट हमेशा साइकोफेंसी करता है। नाउ एडमिरेशन मतलब प्रेज,
किसी को तारीफ करना, प्रेज करना. लव मीन्स प्यार, एप्रिसिएशन अगेन प्रेज. नाउ ये दोनों वर्ड्स एक ही मीनिंग के लिए हैं. आई डू नॉट वॉन्ट टू लीड अ लाइफ ऑफ साइकोफेंसी. कैसी लाइफ नहीं जीना. नाउ ये दोनों नाउन हैं, ये क्वालिटी है. क्वालिटी के लिए सिनोनिम में क्वालिटी ही चाहिए. ये एप्रिसिएशन भी गया, ये भी गया. दिस इज इमोशन, दिस इज ऑल्सो नाउन. दिस इज फ्लैटरी. फ्लैटरी मतलब चमचागिरी करना, बटरिंग करना, मक्खन लगाना, अपने व्यूज रखना ही नहीं. तो साइकोफेंट इज अ पर्सन वन हु फ्लैटर्स, जो किसी को भी मक्खन लगाता है, जो किसी की भी बटरिंग करता है, जो किसी की भी चमचागिरी करता है. तो साइकोफेंसी मीन्स फ्लैटरी. ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेंटेंस. सो नेक्स्ट स्टूडेंट, नाउ वील सी द नेक्स्ट सेंटेंस. इन इंडिया इट हैज बिकम इजी टू अटैक. किसी पे हमला करना, अटैक. कल्चरल आर्टिफैक्ट्स दीज डेज, कि किसी के भी कल्चर पे अटैक करना इंडिया में बहुत इजी हो गया है. सिनोनिम किसका ढूंढना है? अटैक का. अटैक मतलब हमला करना. Okay, now beckon. What do you mean by the word beckon? Beckon का मतलब क्या है? बेटा नोट डाउन द वर्ड्स जो ऑप्शंस में है, उनके भी मीनिंग याद रखो. बेकॉन मतलब किसी को हाथ से इशारा करके बुलाना. एज वी से कम हियर, जस्ट कम विथ मी, फॉलो मी. तो व्हेन आई एम डूइंग दिस जेस्चर, जो मैं एक्शन कर रही हूं, कम ऑन लेट्स स्टार्ट, कम ऑन लेट्स स्टडी. तो जब मैं हाथ से ऐसा इशारा कर रही हूं, उसको हम बोलते हैं बेकॉन. ओके, नाउ बेल्च. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बेल्च? बेल्च मीन्स एमिटिंग द विंड, एमिटिंग द एयर. अब दो चीज से, आपके घर में अगर चिमनी लगी है, चिमनी अगर फैक्ट्रीज में चिमनी होती है, चिमनी वो हवा बाहर फेंकती है. क्लियर? ये तो हुआ चिमनी के लिए. नाउ वी ह्यूमन बीइंग्स आल्सो बेल्च इन द फॉर्म ऑफ बर्पिंग. बर्प करना, डकार लेना, बर्प करना, डकार लेना, अंदर की हवा बाहर छोड़ना. तो दैट इज बेल्च. बेल्च मीन्स टू बर्प, दैट मीन्स डकार लेना. ओके, नाउ अटैक में बेकॉन और बेल्च तो बिल्कुल ही खत्म हो गए. ये सारे दोनों ऑप्शंस निकल गए. बचा है असॉल्ट और एप्रिशिएट. तो अटैक का एप्रिशिएट मतलब प्रेज, एप्रिशिएट मतलब प्रेज, तो ये भी गलत. अटैक मतलब असॉल्ट. असॉल्ट इज द अनदर वर्ड फॉर अटैक, मतलब हमला करना. ओके, नाउ नेक्स्ट. A local court granted bail to the criminal on Thursday. What do you mean by bail? Bail मिल जाना, bail मिल जाना. जो क्रिमिनल जेल में था वो वहां से छूट गया. For a temporary period. बेल पर बाहर आना, for a temporary period जेल से बाहर आना. क्लियर? क्रिमिनल को कोर्ट ने बेल दे दी. ग्रांट करना, ग्रांट, परमिशन ग्रांटेड. The principal granted the permission to the students for picnic. तो परमिशन मिल जाना. क्लियर? ना सी, कन्फेस्ट करना आपको पता है. कन्फेस्ट करना अपनी गलती मानना, अपनी गलती एक्सेप्ट करना. डोनेट करना, यू नो, डोनेट करना दान देना. Nowadays in the time of lockdown many people are donating food to the needy persons. Okay, now allow करना और yielded. yield मतलब प्रोड्यूस करना. The yield of the farm is low. प्रोडक्शन, प्रोड्यूस. ग्रांट करना, अलाउ करना. तो कोर्ट ने क्रिमिनल को बेल अलाउ कर दी. ग्रांटेड, अलाउड. क्लियर? नाउ नेक्स्ट. The judge told that he would analyze the evidence. Now what do you mean by evidence? एविडेंस का मतलब क्या है? आपको पता है, एविडेंस हमने किया है. एविडेंस मतलब प्रूफ, मीन्स सबूत. एविडेंस एंड देन डिलीवर द वर्डिक्ट. वर्डिक्ट आपको पता है. वर्डिक्ट मतलब जजमेंट. वर्डिक्ट मतलब जजमेंट, फैसला. नाउ जज ये बोल रहा है, वो पहले प्रूफ को, सबूतों को देखेगा,
उनको जांचेगा, परखेगा, उनको एनालाइज करेगा, सबकी गवाहियों पे एनालाइज करेगा, सब सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए. Remember the dialogue in the court? Same thing. The sentence is delivering the same thing. Sentence ये बोल रहा है कि जज ये बोल रहा है सारे सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए मैं अपना फैसला सुनाऊंगा, मैं अपना फैसला दूंगा, डिलीवर करूंगा. ओके, डिलीवर यहां सेंटेंस का मतलब आया. ओके, होम डिलीवरी, घर तक देके जाना. डिलीवरी बॉय जो आपको देके जा रहा है सामान, डिलीवरी बॉयज. तो डिलीवर करना, देना. नाउ सी, लिबरेट करना, इजी करना. सरेंडर करना, गिव अप करना. ट्रांसफर करना, दूसरे को देना. ट्रांसफर करना, दूसरे को देना या दूसरी जगह पर जाना. प्रोनाउंस करना, देना. ना डोंट गेट कंफ्यूज विद द ट्रांसफर. जब किसी वर्ड्स की या वर्बल चीज की बात हो रही है, वर्बल कोई चीज आप कैसे दोगे? बोल के ही तो दोगे. ही डिलीवर्ड हिज स्पीच. चीफ मिनिस्टर डिलीवर्ड हिज स्पीच. वो स्पीच उसने कैसे दी आपको? बोलकर ही तो दी कि हाथ में लिख कर दी? उसने बोल कर दी. बोलने के लिए क्या बोलते हैं हम? प्रोनाउंस. तो डिलीवर जजमेंट. अगर यहां होता डिलीवर द थिंग्स, थिंग्स के लिए प्रोनाउंस नहीं आएगा. पर वर्ड्स, जब भी बात वर्ड्स की हो रही है, शब्दों की हो रही है, शब्द कैसे होंगे? बोल के. बोलने के लिए प्रोनाउंस. तो उसने बात किसकी की है? जजमेंट की. जजमेंट वो कैसे देगा? जजमेंट सुनाएगा. स्पीच बोलेगा. उनके लिए यूज होता है प्रोनाउंस. तो प्रोनाउंस इज द राइट आंसर. नाउ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीजेंट मूवमेंट वाज indissolubly linked with the national struggle for freedom. नेशनल स्ट्रगल फ्रॉम फ्रीडम से डेवलपमेंट ऑफ पीजेंट मूवमेंट जुड़ा हुआ था. ना इस वर्ड को ब्रेक करते हैं. डिसॉल्यूबली. इनको छोड़ के हम यहां अगर लें डिसॉल्यूबल, उसको और ब्रेक करते हैं सॉल्यूबल. क्लियर? अब पे अटेंशन, स्टेप बाय स्टेप. सॉल्यूबल मतलब जो सॉल्व हो जाएगा, जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं. डिसॉल्यूबल जो डिसॉल्व हो जाएगा, क्लियर? सॉल्यूबल को हम डिसॉल्व कर सकते हैं. आप कुछ सोल्यूशन बता रहे हैं. सोल्यूशन में if I add sugar to water, basic chemistry, if I add sugar to water, it will dissolve. dissolve हो जाएगा. Now indissolubly जो dissolve नहीं हो रहा है, इसे ऐसे ही याद रखना, जो dissolve नहीं हो रहा है, यहां in लग गया. मैं ट्रिक बता रही हूं आपको. I am not teaching the chemistry, I am telling you the trick. डिसॉल्यूबल जो डिसॉल्व हो जाएगा. आप ट्रिक से याद रखें. डिसॉल्यूबल जो डिसॉल्व हो जाएगा. इनडिसॉल्यूबल जो डिसॉल्व नहीं होगा. क्लियर? जो डिसॉल्व नहीं होगा. हमने एक ट्रिक याद रख ली. जो डिसॉल्व नहीं होगा दैट मीन्स जो उसमें नहीं मिलेगा. चेक इट आउट. फर्मली मीन्स स्ट्रांगली. Vaguely means not clear, धुंधला. Steadily means slowly. Individually means अलग अलग. Now हम ये कह रहे हैं, अब मीनिंग लिख के देखिए आप, कौन सा मीनिंग कनेक्ट होगा. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीजेंट मूवमेंट से कैसे कनेक्टेड थी? स्ट्रांगली कनेक्टेड थी कि अनक्लियरली कनेक्टेड थी? इंडिविजुअली कनेक्टेड थी कि स्लोली कनेक्टेड थी? वो स्ट्रांगली कनेक्टेड थी, क्योंकि वो उसमें मिक्स नहीं हुई थी. वो स्ट्रांगली, फर्मली, फर्म बिलीव्स, हमने अभी वर्ड किया है, फर्म बिलीव्स, स्ट्रांग बिलीव्स. आपके उसूल
जो कभी नहीं बदलेंगे. Firmly means strongly. तो indissolubly का मतलब है firmly. Now weather conditions have been improving over the past year. Now check out this. Improving, easy word. Improving मतलब you all are improving and you must improve day by day. जब मैं बात कर रही हूँ improve करने की, मतलब अच्छे पे अच्छा, improve करना, अच्छे पे और अच्छा होते जाना. आप अच्छा कर रहे हो बच्चा, लेकिन you must improve, और अच्छा करना है. Got the trick? Now check it out. Mending, mending मतलब जोड़ना. The cobbler mends the shoes. Cobbler जूतों को जोड़ता है. Amending change करना. Amendments in the constitution, changes, amend करना, change करना. Becoming better या advancing. Easy option for you. Becoming better, और पे और अच्छे होते जाना. Now see how easy sentences are coming in the exam. Now, very interesting thing, just pay attention. The confusion on the interlocutor's face was gratifying. पहली बात, what do you mean by interlocutors? Pay attention what I am telling you. One who takes part in conversation or a dialogue. Clear? A dialogue. मतलब समझो. इंटरलॉक्यूटर वो होता है जो कन्वर्सेशन में पार्ट लेता है या डायलॉग में पार्ट लेता है. नाउ इसका ऑपोजिट मोनोलॉग. बेटा देखो, एक से दूसरा वर्ड जुड़ता जा रहा है. मोनोलॉग का एंटोनिम डायलॉग. मोनो मीन्स सिंगल, लॉग मीन्स बोलना, एज आई एम डूइंग हियर. एज यू ऑल आर फार अवे फ्रॉम मी, वी आर नॉट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन एट दिस मोमेंट. I am just telling you and you are just hearing me. We are not able to interact on this moment. Okay, तो मोनोलॉग मतलब जब एक ही पर्सन बोल रहा है और बाकी सब सुन रहे हैं. डायलॉग मतलब जब कॉन्वर्सेशन हो रहा है, जब इंटरैक्शन हो रहा है, एज वी डू इन द क्लासरूम. जब हमारी क्लासरूम में आई एंड यू इंटरैक्ट, हम बात करते हैं, बातचीत, कॉन्वर्सेशन, उसको हम बोलते हैं डायलॉग. डायलॉग, डाया मीन्स टू या मोर देन टू, मोनो मीन्स सिंगल. तो जब सिंगल पर्सन बोल रहा है तो मोनोलॉग. जब दो लोगों की बातचीत हो रही है या दो से ज्यादा लोगों का कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो वो डायलॉग. नाउ सी, इंटरलॉक्यूटर होता कौन है? जो डायलॉग में पार्टिसिपेट करता है. डायलॉग में पार्टिसिपेट करने वाला डायलॉजिस्ट, जो बात कर रहा है. नाउ चेक आउट. गवर्नमेंट ऑफिसर रॉन्ग, पार्टी वर्कर रॉन्ग, डायलॉजिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरी. द आंसर इज डायलॉजिस्ट. तो जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड. इंटरलॉक्यूटर मीन्स अ पर्सन, one who take part in dialogue, जो बातचीत में हिस्सा ले रहा है, जो कॉन्वर्सेशन कर रहा है. जो कॉन्वर्सेशन कर रहा है दैट मीन्स डायलॉग में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मीन्स डायलॉजिस्ट. ओके, जो अकेला बोल रहा है वो मोनोलॉजिस्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट. ही स्पेंड्स हिज मनी लैविशली. नाउ लैविशली, हमने ये वर्ड बहुत बार क्लास में डिस्कस किया है. लैविशली, वो अपना पैसा कैसे खर्च कर रहा है? कैसे खर्च कर रहा है? खुले हाथों से, एकदम दिल खोल के पैसा खर्च कर रहा है, बिना सोचे समझे, दिल खोल के. इट इज अ लैविश पार्टी, अ लैविश हाउस मीन्स जेनरस, दिल खोल के पैसा खर्च किया है. नाउ सी, हेजिटेटिंगली, झिझक के, सोच के, नो दिस इज रॉन्ग.
जेनरसली, फूलिशली, फूलिशली मीन्स पागलों के जैसे, बिना सोचे समझे, दिस इज रॉन्ग, केयरफुली, सोच समझ के। लैविश का मतलब होता है जेनरसली, दिल खोल के, बड़े दिल से, दैट मीन्स कहीं भी कंजूसी नहीं करना। लैविशिंग लाइफस्टाइल, कंजूसी नहीं करना, फूलिशली नहीं। सम पर्सन लिव अ लैविश लाइफस्टाइल, मतलब एकदम दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं अपने ऊपर, दैट मीन्स कंजूसी नहीं करते। ओके, दे आर नॉट फूलिश, वो फूलिश नहीं है बट वो कंजूस नहीं है। ओके, नेक्स्ट, the government's new policies will come into force from the next fiscal year. Now this is a term to be remembered. Fiscal year calendar नहीं, academic स्कूल का ईयर होता है। स्कूल या कॉलेज के जो ईयर होते हैं उनको हम academic ईयर बोलते हैं। लीप ईयर आफ्टर 4 years। बात है फाइनेंशियल, याद रखना, whenever the accounts are prepared, जितने भी मॉनेटरी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उनमें फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम फिस्कल ईयर भी बोलते हैं बेटा, वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 January to 31 December। ओके, आवर ईयर टाइम पीरियड इज दिस। फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर जो अकाउंटिंग टर्म्स के लिए यूज होता है वो स्टार्ट होता है 1 April to 31 March। 1 April to 31 March। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब भी टीवी पे इनकम टैक्स के लिए इंफॉर्मेशन आती है, दे से March ending, that means 31st March is the last date to pay the income tax, that means year ending। year ending आपका फिस्कल ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च। तो 31 मार्च से पहले अपने जो टैक्सेस हैं वो पे कर दो, बिकॉज 1 अप्रैल से आपको नया रिकॉर्ड बनाना है फॉर द न्यू ईयर। ऑल द अकाउंटिंग, ऑल द टैक्सेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फिस्कल ईयर, दैट इज फ्रॉम 1 April to 31 March। So that is the time period of fiscal year। तो fiscal year means financial, जितने भी पैसों से related, finance means money, तो financial year means related to money matters। तो related to money matters जो government ने हमारा year allot किया है या declare किया है, that is 1 April to 31 March। Next, abundant food was available for the soldiers in the mess। ना abundant आपको पता है, abundant rainfall आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। abundant का ऑपोजिट होता है scarce, कमी, ये ऑपोजिट। ना little, तो इसका ये रॉन्ग हो गया। delicious means tasty। ओके, wholesome हमने कल ही किया है, means balanced। डाइट के लिए यूज होता है, क्रॉप्स के लिए, फूड के लिए। plentiful means बहुत ज्यादा, abundant means बहुत ज्यादा, तो आंसर इज plentiful। B is the answer for abundant। Now the next, the discussion was wound up after a long and fruitful exchange views। exchange of views होना चाहिए यहाँ पे, exchange of views। Now wound up, अब ये आपका जो wound और wound up इसमें डिफरेंस है। wound up is a phrasal verb। wound means injury, चोट, जख्म। क्लियर? wound up ये V2 है, इसका V1 wind up। now this is not wind, this is wind up। wind up, wound up मतलब सेम। after a long, long मतलब बहुत लंबा। fruitful means फ्रूटफुल, जिसमें से फ्रूट्स निकल रहे हैं। फ्रूटफुल मीन्स पॉजिटिव, दैट मीन्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। फ्रूटफुल गिविंग पॉजिटिव रिजल्ट। तो फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज मतलब उस डिस्कशन का रिजल्ट पॉजिटिव रहा। ना वुंड अप का पोस्टपोन करना, डिले करना। क्लियर? कट शॉर्ट करना, उसको स्मॉल करना या उसकी ड्यूरेशन ब्रीफ करना। क्लियर? इंटरप्ट करना, टू स्टॉप इन बिटवीन। कंक्लूड करना, खत्म करना, टू एंड।
नाउ चेक आउट द मीनिंग. डिस्कशन को पोस्टपोन कर दिया गया. जब रिजल्ट्स आ गए हैं फ्रूटफुल, तो हम क्या पोस्टपोन करेंगे? नो. जब रिजल्ट्स ही आ गए हैं तो उसको छोटा क्या करेंगे? जब यहां लिख ही दिया लॉन्ग, जब यहां लॉन्ग लिख दिया तो कट शॉर्ट तो आएगा ही नहीं. इंटरप्ट, जब हमारा लॉन्ग डिस्कशन चला है तो रोका कहां है हमने? आंसर इज कॉन्क्लूडेड. वुंड अप करना, खत्म करना. वुंड अप करना, कॉन्क्लूड करना, खत्म करना. नाउ सी, यहां तो बात थी मीटिंग की. अगर मैं बोलूं ही वुंड अप हिज बिजनेस ड्यू टू लॉकडाउन. नाउ वुंड अप मतलब खत्म कर दिया, बंद कर दिया. तो वुंड अप, यहां पे वुंड अप कॉन्क्लूड मतलब डिस्कशन खत्म हुआ, पूरा हुआ, बंद हुआ. यहां बिजनेस वुंड अप मतलब खत्म हुआ, पूरा हुआ, बंद हुआ. क्लियर? नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेंटेंस.